Hello dear students, how are you? Hope you all are fine at your home and doing studies well. Okay students, today I am going to tell you the brain teasers exercise, and students, we have already done in the previous classes the division process and the multiplication processes. Okay students, let's start now. There is a question number 1, tick the correct answer. There is tick the correct answer. So first question is, there are how many dozens in 264? Okay students, tell me one thing, कि there are how many dozens? We have to calculate here the dozens in 264. अब 264 को dozens में डिवाइड करना है. It means 260 1 डजन में कितने होते हैं? यस 12. काउंटिंग कितनी होती है 1 डजन में? 12 थिंग्स होती हैं. देन 264 डिवाइडेड बाय 12, we will get there are how many dozens in 264. Now what's the answer is 12 2 ja 24 and 2 12 2 ja 24. 22 is the answer. Divide it and it's get the 22 as the answer. Okay students, now there is 22 is the answer here. Now students, let's go to the next part. There is a second. In the second, there is given here the 2 lakh into what is equals to 20 lakh. Yes, tell me the answer. Yes students, there is 2 lakh into 20 lakh. How 2 lakh into what is equals to 20 lakh? Yes, it means this is multiplied to the 10. This will become as the 20 lakh because this is 2 lakh. If 0 is included in this number, then this becomes as the 20 lakh. अगर यहाँ हम 0 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई और कर दें, 1 0 नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम यहाँ 20 लाख पाएंगे. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ देयर इज अ क्वेश्चन नंबर सी. 7 इंटू 3 इंटू 0 इंटू 5, एनीथिंग मल्टीप्लाइड टू द 0. यहाँ हमें सिर्फ 0 देखना है कि 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है. इट डजंट मैटर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमेशा क्या देता है? 0. इट विल गेट द आंसर थर्ड. इफ डिवाइजर इज 7, रिमाइंडर इज 3, क्वोशिएंट इज 3, देन डिवाइडेंड. यस, हमने निकालना सीखा है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. यही निकालना सीखा है. डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 3. 7 3 जा 21 plus 3 24. It will be the answer here. Now there is the product of greatest 2-digit number and the smallest 3-digit number is the product of greatest 2-digit number. What will be the greatest 2-digit number? That is 99. And the smallest 3-digit number is 100. When we multiply 99 to 100, what will we get? 99. Product क्या हो जाएगा यहाँ? 99 into 100. What will become as 99. और यहाँ जितने 0 होते हैं उतने ही 0 हम इस नंबर में मल्टीप्लाई करके लगा देते हैं. 99 लिखा पहले तो 99 का एज इट इज, और जितने 0 हैं उतने 0 लिख देंगे. तो आंसर इज 9900. नाउ देयर इज द क्वेश्चन नंबर 2. इन द क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स. इन सम्स को सॉल्व करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है. दिस विल बिकम्स दिस, this will become this will divided by this will divided by this. You will do yourself all the questions. Now there is the question number 3. There is the question number 3. In the question number 3 we have to place the star value. यहाँ हमें स्टार की जगह कोई वैल्यू पुटअप करनी है. क्या वैल्यू पुटअप करनी है ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ आपको जब मल्टीप्लाई करना होगा, सबसे पहले 8 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? इस पूरे नंबर को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये नंबर आएगा, और यहाँ जो भी आएगा कैरिंग करने के बाद वो हम पुटअप करेंगे, ऐड करेंगे. इज दिस क्लियर? नाउ फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे नंबर को, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ आएगा, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई बिकॉज 1 10s आर देयर,
So for tens, there we will place here the only 1 0. हम यहाँ एक 0 पुट अप करेंगे. Now अब हम नेक्स्ट 300 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 0 पुट अप कर देंगे. तो पहले 2 0 पुट अप कर दीजिए, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ जो आंसर आए उसको पुट अप कर देंगे. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? सो I hope it will get no problem, and there is the sum of these 3 numbers. Is this clear students? Now we will go to the B part. In the B part same here, आपको यहाँ करना है डिवाइड. हम 432 को किससे डिवाइड करें कि 24 आ जाए. Is this clear students? तो यहाँ हम पहले ही कर चुके हैं कि अगर हम डिवाइजर और क्वोशिएंट, डिवाइजर दिस विल बी द डिवाइजर, दिस विल बी द क्वोशिएंट, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और रिमाइंडर ऐड कर दें तो हमारे पास डिवाइडेंड बच जाता है. तो इट मीन्स अगर हम 432 को 24 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बचना चाहिए? क्वोशिएंट इज 18. इट मीन्स 432 इज डिवाइडेड बाय 24. इसमें हमें क्या करके देखना है? 432 डिवाइडेड बाय 24. This will getting here the star mark. Is this clear students? स्टार मार्क मिल जाएगा हमें अगर हम इस नंबर को 24 से डिवाइड कर देंगे. नाउ देर इज अ पार्ट सी हियर. इन द पार्ट सी देर इज ऑल्सो द डिवीजन प्रोसेस, एंड पार्ट सी में भी हमें डिवीजन ही करना है. बट स्टूडेंट्स डिवाइडेंड निकालना है, तो डिवाइडेंड निकालने के लिए हमने पहले भी रूल किया है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास डिवाइडेंड आ जाएगा. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? तो 60 और 100 को 60 और 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए. 60 इंटू 10 इज इक्वल्स टू डिवाइडेंड, एंड दैट्स इक्वल्स टू 600. इट विल बी डन हियर, सो इट विल गेट द 600. नाउ देयर इज द पार्ट डी. पार्ट डी में भी आपको मल्टीप्लाई ही करना है, और मल्टीप्लाई आप खुद करेंगे. ये हमने कर दिया है इसमें से 5 से मल्टीप्लाई, और अब 2 10 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले 0 प्लेस करिए, फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करके इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लेस करिए. नाउ नेक्स्ट इज द 1 से मल्टीप्लाई करके, बट उससे पहले हमें 2 0, क्योंकि ये नंबर कौन सा है? 100th प्लेस नंबर. सो देर आर द 100s. सो 100 के लिए पहले 100 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन multiply to the 1. It will get this answer. Okay students, now we will go to the next question. There is a fourth part. Divide and check the answer. डिवाइड करना है और हमें आंसर को चेक भी करना है. तो पहले डिवाइड करिए, और डिवाइड करने के बाद हमें कौन सा रूल अप्लाई करना होता है चेक करने के लिए? चेक करने के लिए हमें चेक करना है कि डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस remainder is equals to the dividend. This will be the dividend. Is this clear students? We have to check here. This is the quotient, this is the रिमाइंडर, दिस द क्वोशिएंट एंड दिस इज द रिमाइंडर. ये क्वोशिएंट और रिमाइंडर आएंगे. इसके बाद चेक करने के लिए हम इस रूल का अप्लाई करेंगे. डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करेंगे. क्या वो डिवाइडेंड आ रहा है? इट मीन्स चेक. और नहीं आ रहा है तो हमारे से कोई मिस्टेक हुई है. नाउ देयर इज द क्वेश्चन नंबर 5. गिवन दैट 270 इंटू 15 इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड द प्रोडक्ट. हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? सो 270 इंटू 16 इज 270. This will be given that 270 into 15 is equals to this. Find the product. तो हमें इस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. I will do here it. This is the brain teasers and the unit 4 and brain teasers exercise question number 5. It will be given here. The question 5 is 270 into 15. 270 into 15 is equals to 4050. और A प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है 270 into 16. ये हमें फाइंड आउट करना है. Yes students, let's see. We have to find here the 270 into 16. So students, given क्या है? हमें यहाँ 15 से मल्टीप्लाइड गिवन है, बट हमें निकालना है 16 से मल्टीप्लाई करना. तो क्या मैं 16 को 15 + 1 लिख सकती हूँ? लेट्स सी. इनटू
16 को मैंने लिखा 15 प्लस 1. इट विल बी क्लियर देयर. नाउ अब ये नंबर हमारे पास क्या बनेगा, देखिए ये मल्टीप्लाई है और ये ब्रैकेट का यूज है, तो मैं ये आपका नेक्स्ट क्लासेस में आप सीखेंगे, बट इस क्लास में आपको एक क्वेश्चन इसलिए दिया है कि ताकि पहले से ही आपको इन चीज़ों की नॉलेज हो जाए कि आपको आगे जाकर के कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ेगा. सो स्टूडेंट्स, देयर इज अ ब्रैकेट. इट मीन्स इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो सारा 270 से मल्टीप्लाई हो रहा है. इज दिस क्लियर? और बीच में हमने ऐड कर रखा है. इट मीन्स अगर मैं 270 को 15 से मल्टीप्लाई कर दूं और प्लस कर दूं 270 को 1 से मल्टीप्लाई, तो मेरा इक्वल आंसर आएगा. लेट्स सी, 270 इंटू 15. एक बार तो मैंने इसको 15 से मल्टीप्लाई किया, फिर बीच में कैसा साइन लिया, प्लस का, और फिर मैंने 270 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया. इट विल बी डन हियर. 270 इंटू 15, व्हाट विल वी गेट हियर? This will be done here, and plus 270. What will we get here? This is 0, this is 2, this is 3, and this is 4. 4320 is the answer here. Is this clear, students? देखिए हमें कुछ दिया हुआ है. इट मीन्स हमें इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते थे. 270 को 16 से मल्टीप्लाई करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है कि जो हमें चीज गिवन है उसका हमें यूज करके और हमें आंसर निकालना है. तो हमें एक दूसरे को मिक्सअप करना आना चाहिए कि इसको इसमें मिला दें तो हमारे पास क्या आंसर निकल सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. तो यही हमने यहाँ सीखा है कि अगर हमें ऐसा गिवन है और ये हमें निकालना है तो हम इसका यूज कहाँ करें कि हमारा आंसर आ जाए. इज दिस क्लियर? 270 को 15 से मल्टीप्लाई करते, 16 से मल्टीप्लाई करते बहुत लेंथी हो जाता, तो हमने इसको डायरेक्टली यूज किया. इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय यहाँ हमारे पास दिया हुआ है पहले से ही कि 270 को 15 से मल्टीप्लाई करने के पर क्या आता है, 4050. इट विल गेट देयर 4050 एंड प्लस 270. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? हमने इसका यूज किया है, बस ये प्रॉपर्टी यूज करनी थी हमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट था. नेक्स्ट द बी पार्ट इज 270 इंटू 14. अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें गिवन तो है 15 से मल्टीप्लाई किया हुआ, बट हमें निकालना क्या है, 14. तो क्या मैं 14 को 15 में से 1 माइनस करके लिख सकती हूँ? यस, 15 माइनस 1 14 ही होता है. तो मैंने लिख दिया इसको 270 इंटू 15 माइनस 1. यस, इट्स द सेम हियर. 14 को 15 माइनस 1 ब्रैकेट में ले लिया ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि इस ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो यही 14 ही है. इज दिस क्लियर? इट मीन्स 270 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो एक बार तो 270 को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया और बीच में कैसा साइन है, फिर माइनस कर दिया हमने 270 को 1 से मल्टीप्लाई करके. इज दिस क्लियर? क्योंकि 270 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले 15 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट बीच में कैसा साइन है, माइनस का, उसको माइनस कर देंगे जो आंसर आएंगे. तो 270 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, वही वाला जो हमें पहले से गिवन है, हमें इसी का यूज करना था बस. 4050, बीच में माइनस का साइन और माइनस 270. बताइए आंसर मेरे पास क्या आया? $3,780. This will be get the answer here. Okay students, this will be the question number 5 completed here. हमें यहाँ भी उसी चीज का यूज करना था, 270 into 15 and it will be the 4050. इसका हमने यूज किया और फिर हमने सॉल्व कर दिया. It will get there. Now there is a question number 6. In the question number 6, it will be given here. What is the cost, total cost of fencing? What is the total cost of fencing 275 plots of land? If the cost of fencing one plot of land is 970, one plot of land. There are given here 270 plots and one plot fencing is 95 rupees. So, cost of fencing of one plot is equals to rupees 950. 950 rupees is given here. Now there we have to find here the total cost of
fencing 275 प्लॉट्स। 275 प्लॉट्स को फेंसिंग करने में हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा बताइए। देखिए, एक प्लॉट को खर्च करने में हमें 950 रुपीज लगते हैं, तो टोटल 275 प्लॉट्स को फेंसिंग करने के लिए हमें कितने रुपीज लगेंगे बताइए। मल्टीप्लाई, कम का दिया हुआ है, ज्यादा का निकालना है तो क्या करते हैं हमेशा मल्टीप्लाई। यस, तो हम क्या करेंगे 950 इंटू 275। 950 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 275 से, और हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और जीरो को हम एज इट इज लास्ट में रख देते हैं। दिस विल बी, और 275 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 95 से। 275 को 95 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आता है आपके पास। 5 5 जा 25, 2 इज कैरिंग देयर, 5 7 जा 35 प्लस 2 37, it will be carrying 3, 5 to the 10 plus 3 13. Now again there will be placed here a 0 because there are 9 tens. 9 tens को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। 9 5 जा 45, 4 is carrying there, 9 7 जा 63 plus 4 67, 6 is carrying there, 9 to the 18, 18 plus 6 24, 5 2 11 6 2. This will be get the answer, that is 26125. Okay students, so it will be the 2,61,250 rupees for the total cost of fencing of 275 plots. Is this clear students? This will be the answer here. Now there is a question number 7. In the question fill in the blanks are there. There is 7,612 into 40 is equals to 40 into 7,612, because मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो भी हमारे नंबर्स में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो यहाँ सिर्फ ऑर्डर चेंज किया हुआ है, देखिए ये आगे लिखा हुआ है और इस तरफ इक्वल टू के दूसरी साइड में इसने बाद में लिखा हुआ है। सो 7612, इट मीन्स यहाँ क्या होना चाहिए, मिसिंग नंबर इज 40, सो इट विल बी डन हियर। नाउ देयर इज ब्लैंक इंटू 1, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा नंबर खुद ही आता है। तो ये नंबर खुद कब आएगा, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नंबर खुद होना चाहिए यहाँ पर 289210। सो नाउ देयर इज 515 इंटू दिस इंटू 5 इंटू 500 इंटू 18। 18 इज द सेम एट द सेम प्लेस, बट 515 इज देयर एंड 5 इज देयर। इट मीन्स जो ब्लैंक प्लेसेस हैं उनमें हम मिसिंग नंबर्स लिख सकते हैं। इसमें हमारे पास ये 5 नहीं है तो हमने 5 प्लेस कर दिया, और यहाँ हमारे पास 515 नहीं है तो इक्वल टू दूसरी साइड में हमने 515 पुट कर दिया। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? 10 इंटू क्या करें कि 8000 आ जाए, तो कुछ 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नंबर 8 ही होना चाहिए जो उसके साथ होगा। 8 तो मस्ट है। देन कितने जीरो की और जरूरत है, 1 जीरो यहाँ है तो इट मीन्स 2 जीरो पहले से ही हुई होंगी। 800 दैट इज इक्वल्स टू 8000। इट विल बी डन हियर। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद आता है, दैट इज 176 इज देयर। एंड नाउ किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं एक नंबर को जो कि 0 बन जाता है, तो ये ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल होता है, 0 इज डिवाइडेड बाय 82 इज इक्वल्स टू 0। नाउ देयर इज द पार्ट जी, दिस विल बी गिवन हियर, देन दिस विल बी डिवाइडेड बाय दिस टू गेट द दिस, बिकॉज इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। हमेशा लर्न अबाउट इट, और यही रूल हमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। यहाँ था यस ये वाला, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें यही मेथड अप्लाई करना है, यही वाला मेथड अप्लाई करना है कि अगर इस नंबर को इससे डिवाइड कर दें तो ये वाला नंबर निकल जाता है, और इस नंबर को इससे डिवाइड कर दें तो ये वाला नंबर निकल जाता है। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? सो इट विल गेट द आंसर 35। ये 35 आंसर हो जाएगा। नाउ 7542 डिवाइडेड बाई 1000, क्वेश्चन इज 7 बिकॉज लास्ट 3 डिजिट्स 0 हैं। यहाँ भी 3 डिजिट्स को छोड़ करके बाकी क्वेश्चन हो जाएगा और 3 डिजिट्स क्या हो जाएंगे, रिमाइंडर। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? दिस विल बी द ब्रेन टीचर्स एक्सरसाइज हियर। नाउ वी विल गो टू द वर्कशीट यूनिट 5। द यूनिट 5 नेम इज लेंथ।
ओके स्टूडेंट्स, आप अपने जो सराउंडिंग में थिंग्स देखते हैं उन थिंग्स की लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं. यू कैन इजीली फाइंड द लेंथ, बट हाउ, कैसे? लेट्स सी कि हमारे पास एक स्केल हो, कोई भी स्केल, किसी भी तरीके का स्केल अपने घर पे रखा हुआ हो, तो उससे आप मेजर करके देखना. सबसे पहले तो इस बुक की जो लेंथ है और ब्रेड्थ है, इसको आप मेजर करके देखना कि लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है, और मुझे व्हाट्सएप पर राइट डाउन करके बताना कि कितना आपकी लेंथ है और कितनी इसकी ब्रेड्थ है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ देयर इज अ लेंथ. डू यू रिमेंबर? देयर इज अ सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर. यूनिट्स आर इन द लेंथ. लेंथ में कौन कौन सी यूनिट्स का यूज होता है? सेंटीमीटर, दैट इज यहाँ से हम यहाँ तक काउंट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर. जैसे जैसे हम जिस नंबर पर जाते जाएंगे वो उतना ही सेंटीमीटर बनता जाएगा. ऐसे ही मिलीमीटर, मीटर, यहाँ लिखा हुआ होता है. जो यूनिट्स लिखी हुई होंगी आप उसी अकॉर्डिंग उसको मेजर करेंगे. एंड देयर इज अ किलोमीटर. किलोमीटर को कब हमें इस छोटे स्केल से मेजर नहीं कर पाएंगे, तो हमें बड़े स्केल का यूज करना पड़ेगा. लेट्स सी, देयर इज, वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू ऑलवेज 1000 मीटर. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. 100 सेंटीमीटर कुछ आप घर पे मेजर करेंगे, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. आपने देखा होगा कि जब आप शॉप पर जाते हैं तो शॉपकीपर से आपने मांगा, आपकी मम्मा ने मांगा कि 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो शॉपकीपर क्या करता है कि वो मेजरमेंट अपने पास रखता है. मेजरमेंट के तरीके काफ़ी हो सकते हैं. जैसे उसके पास एक टेबल होती है, उस टेबल पर वो मेजर करके रखता है कि मेरा इतना 2 फीट होगा, तो इट मीन्स इतना 2 सेंटीमीटर होगा. तो वो उसी हिसाब से मेजर करके यहाँ से यहाँ तक लेंथ लगाएगा. जो भी धागा है या कोई भी चीज़ है, कपड़ा है, कुछ भी खरीदा है, तो उसको यहाँ तक लगाएगा, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर दोबारा से यहाँ तक, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, ऐसे करके वो मेजर करते हैं. इसी तरीके से हम यहाँ भी सीखेंगे कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो ये फिक्स होते हैं, आपको इनको लर्न रखना है दोनों को. 1 मीटर 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर 1000 मीटर. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तक किलो जब भी आएगा तो हमेशा 3 जीरोज आएंगे उस नंबर में. किलोग्राम हो सकता है, किलो लीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें हम हमेशा किसका यूज करेंगे? 3 जीरोज का यूज करेंगे. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 1. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, देयर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट. जो लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है मीटर, और जो सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो होती है मिलीमीटर. स्टूडेंट्स, ये दोनों पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक में पहले लिखेंगे, उसके बाद आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना है. इज दिस क्लियर? नाउ देयर इज द क्वेश्चन नंबर 1. नेम एनी 5 थिंग्स सोल्ड बाय शॉपकीपर बाय मेजरिंग लेंथ. लेंथ को मेजर करने पर नेम एनी 5 थिंग्स सोल्ड बाय ए शॉपकीपर बाय मेजरिंग लेंथ. लेंथ को मेजर करके शॉपकीपर से बेचे जाने वाली किन्हीं 5 चीजों के नाम आपको बताने हैं. तो हम क्या क्या खरीद कर लेकर आते हैं शॉपकीपर से, जिसमें लेंथ मेजर करते हैं? यस. कपड़े खरीद कर लेकर आते हैं. यस. एंड नेक्स्ट पॉइंट, यस, हम शर्ट्स हुई या कोई भी चीज हुई, हम उसको लेंथ में ही मेजर करके कटवा कर लेकर आते हैं. और भी बहुत सी चीजें हैं. अच्छा, आप ये आपका वर्क रहेगा कि आप अपने मम्मा से या पापा से पूछ करके और आप उन 5 चीजों के नाम लिखेंगे जो वो लेंथ से मेजर करके शॉपकीपर से लेकर आते हैं. फाइंड द लेंथ ऑफ एनी 3 ऑब्जेक्ट्स इन योर क्लासरूम. आपकी क्लासरूम में 3 ऑब्जेक्ट्स की आपको लेंथ बतानी है. तो लेंथ आप मेजर करेंगे. क्लासरूम में आपके पास क्या होता है? अगर आपके पास कोई पेंसिल भी है तो आप पेंसिल की लेंथ मेजर करके लाएंगे, कि वो भी क्लासरूम का ही कोई ऑब्जेक्ट होता है. क्योंकि अभी आप क्लासरूम में नहीं हैं, तो इसलिए आपको घर पर ही करना है जो कुछ करना है. तो पेंसिल का मेजरमेंट करेंगे, और आप अपनी बुक का मेजरमेंट करेंगे. इसकी बुक का लेंथ अलग मेजरमेंट करेंगे और ब्रेड्थ अलग मेजरमेंट करेंगे. और वन मोर थिंग, आपको 3 ऑब्जेक्ट लेने हैं, और कोई भी एक ऑब्जेक्ट, नोटबुक
ज्योमेट्री बॉक्स का मेजरमेंट करेंगे, उसके लेंथ का भी और ब्रेड्थ का भी और हाइट का भी, तीनों का मेजरमेंट करेंगे आप। नाउ देयर इज द क्वेश्चन नंबर 3, विच यूनिट विल यू यूज टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग। इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए हम किन यूनिट्स का यूज करते हैं। बेटा ये रिवीजन एक्सरसाइज है ओनली, आप पहले भी इन चीजों को लेंथ के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो सेकेंड क्लास में, थर्ड क्लास में, सो इट विल नॉट डिफिकल्ट फॉर यू। सो फाइंड द लेंथ ऑफ एनी 3 ऑब्जेक्ट्स in your classroom and which unit we will use to express this height of a telephone pole। टेलीफोन पोल के लिए हम किसका यूज करेंगे, कौन सी यूनिट, हाइट ऑफ ए टेलीफोन पोल, हम किस यूनिट का यूज करेंगे। क्या हम मिलीमीटर का यूज करेंगे? नो। क्या हम सेंटीमीटर का यूज करेंगे? नो। क्या हम मीटर का यूज करेंगे? यस, मीटर का यूज करेंगे। सेंटीमीटर छोटी अमाउंट होती है, मिलीमीटर बिल्कुल छोटी होती है, इस लाइक ये इतना सा मेजर करना होता है, ये वाला इसका सिर्फ टिप मेजरमेंट करना होता है या इतना मेजर करने का, तो ये हम मिलीमीटर में काउंट करेंगे। बट अगर हमें सेंटीमीटर में काउंट करना है तो कुछ इस तरीके की इमेज चीजें हैं, इतनी साइज की या इससे थोड़ी सी बड़ी हो, बुक के साइज की या टेबल के साइज की, तो हम किन यूनिट्स का यूज करेंगे? हमेशा सेंटीमीटर का। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ी चीज है, जैसे दीवार है, दीवार लेंथ हुई, ब्रेड्थ हुई दीवार की, तो उसको हम मेजर करने के लिए हम मीटर का यूज करेंगे। और हमारे पास अगर इससे भी ज्यादा बड़ी डिस्टेंस को मेजर करना होगा, जैसे रोड नारनौल टू एनी विलेज, डिस्टेंस कितनी है, क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, स्केल से मेजर नहीं कर पाओगे, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे? हमेशा किलोमीटर मेजरमेंट का यूज करेंगे। किलोमीटर, आपके घर से और आपके स्कूल की कितने डिस्टेंस है, इसको मेजर करने के लिए हमेशा कौन सी यूनिट का यूज करते हैं? किलोमीटर, क्योंकि वो बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, बहुत बड़ी डिस्टेंस मेजर करनी पड़ती है वहां पर, तो हम वहां यूज करेंगे किलोमीटर का। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ देयर इज द नेक्स्ट डिस्टेंस, लेंथ ऑफ योर स्कर्ट्स एंड शॉर्ट्स। स्कर्ट्स और शॉर्ट्स को की लेंथ को मेजर करने के लिए हम किस डिस्टेंस का यूज करेंगे? यस, सेंटीमीटर, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इसलिए हम सेंटीमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। किसी जगह से किसी जगह, दूर जगह की डिस्टेंस को मेजर करवा रहा है, तो हम इसमें हमेशा क्या यूज करेंगे? किलोमीटर। हाइट ऑफ योर स्टडी टेबल, स्टडी टेबल, ये आपकी स्टडी टेबल है, देखिए ये स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल का मेजरमेंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? यस, मीटर का। मीटर या सेंटीमीटर, इसमें दोनों हो सकते हैं हमारे पास। टेबल बड़ी है, छोटी है, इतनी टेबल है तो उसका सेंटीमीटर लगा सकते हैं हम, थोड़ी बड़ी टेबल है तो उसका मीटर में यूज कर सकते हैं, बट जनरली इसका सेंटीमीटर में ही आएगा आंसर। नाउ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून, बहुत बड़ी डिस्टेंस हमें मेजर करनी है, और बहुत बड़ी डिस्टेंस मेजर करनी होती है तो हम क्या करते हैं? किलोमीटर। द लेंथ ऑफ द रोड की लेंथ हमें मेजर करनी है, ब्रॉड नहीं, लेंथ मेजर करनी है, तो लेंथ तो बहुत बड़ी होती है, इसमें भी हम हमेशा क्या यूज करेंगे? किलोमीटर। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? दिस विल बी डन हियर एंड नेक्स्ट वर्कशीट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, ये वर्क आप फेयर नोटबुक में करेंगे, कंप्लीट वर्क होना चाहिए, और जो मैंने एक्टिविटी वर्क आपको बताया है आप उसको अपनी एक छोटी सी वीडियो बना करके उसमें भेजेंगे। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, bye students, have a nice day, thank you।